देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो बेटा आप इसको साथ साथ लिखते चले। सो वी आर डिस्कसिंग this 6.1 question from your NCERT of the chapter work, energy and the power. Assign the work done. क्या आपके पास यहाँ पर वर्क डन के साइन को आपने असाइन करना है। Number 1, the work done by the man in lifting a bucket out of the well by means of the rope tied to the bucket. अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक बकेट है और इस बकेट के साथ हम रोप को टाई कर देते हैं, तो जब पर्सन इसको अपनी डायरेक्शन के अंदर पुल करता है तो पर्सन फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है और डिस्प्लेसमेंट भी कहां पर होती है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है द वर्क डन बाय द मैन इन पुलिंग दिस बकेट विद द हेल्प ऑफ द रोप इज पॉजिटिव। दिस इज पार्ट क्या है ये हमारे पास, पॉजिटिव। The work done by the gravitational force in the above case. In the above case, gravitational force is acting in the downward direction. The bucket is going in the upward direction. So bucket going into upward direction, force acting in the downward direction. So the work done against the gravity is negative. Why? Because bucket is going upward. Force of gravity acting downward. Angle between them is 180. Cos 180 is -1. So work done is negative. The work done by the friction on a body sliding down the inclined plane. अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ को स्लाइड कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्लाइड कर रही है, इट इज स्लाइडिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन द upward direction. The work done in this case is also negative. Why this is negative? Because friction is acting in the upward direction. Body is coming in the downward direction. Force and displacement are opposing each other. So the work done by the friction is negative. D. The work done by an applied force on a body moving on the rough horizontal surface with uniform velocity. Now अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट इज यू आर पुलिंग with the help of the applied force and the object is also traveling in your direction. The force and the displacement have the angle of 0 degree. Therefore, the work done is positive. Next, the work done by the resistive force of the air on the vibrating pendulum to bringing it to rest. Now, the question is self-explanatory. If a body comes to the rest, kinetic energy increasing or decreasing? If a body comes to rest, kinetic energy increasing or decreasing? Decreasing. So the work done by the force will be negative. The work done by the force is negative. So work done by the resistive force of the air will be equal to negative. Equal to negative means we are just assigning this sign. So this is question 6.1 from the NCERT. Question 6.2. A body of 2 kg initially at rest moves under the action of an applied force of 7 Newton on a table with a coefficient of kinetic friction 0.1. अगर हमारे पास यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड पाथ, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस अर्शुल रेगा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हमारे पास क्या है, रफ है, with a coefficient of friction is equal to 0.1, with a coefficient of kinetic friction is equal to 0.1. We are applying the force of 7 Newton. What will be the frictional force acting on this body? 2 kg. Normal reaction N, and normal reaction will be equal to 20.
So therefore frictional force will be equal to, the kinetic friction will be equal to mu into n. N is 2g. So mu into 20. Mu into 20. So mu is 0.2. So 0.1. I'm sorry, not 0.2, 0.1 into 20. Frictional force is 2 Newton. 2 Newton. So frictional force is opposing your motion. Applied force is accelerating your motion. So the net acceleration of the body will be towards the bigger force. And therefore acceleration will be equal to support minus oppose. Support minus oppose upon आपके पास mass is 2. So what is the acceleration? The acceleration is 5 upon 2. The acceleration is 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस लगती हैं तो हमारे पास वो बॉडी एक्सेलरेट करती है, और वो कहां की तरफ को एक्सेलरेट करती है? बड़ी फोर्स की तरफ. सपोर्ट माइनस अपोज इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सपोर्ट माइनस अपोज is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. Find the work done by the applied force in 10 seconds. What is the work done by the friction in 10 seconds? What is the work done by the net force on the body in 10 seconds? And change in the kinetic energy of the body in 10 seconds. Concept number 1. Under this acceleration, the body will travel a distance. Under this acceleration, इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा? यह ऑब्जेक्ट क्या करेगी? बताओ शाबाश. The object will travel. The object will travel. The object will travel some distance. The object will travel the distance. S is equal to ut plus half at square. Now why I am using this formula? Why I am using this formula? Because the teacher has given me the time of 10 seconds. कि 10 second का work done निकालना. So the displacement is given by initial velocity 0 into 10 plus of half into a is a 2.5 into t square 10 का square. So we can write down this is 2.5 into 100 by 2 यानी कि 50. Point और ये 0 कैंसल हो जाएगा and this will be 125 मीटर. So इस एक्सेलरेशन से ये बॉडी कितनी दूर चलेगी? 125 मीटर दूर चलेगी. ये बॉडी 125 मीटर दूर चलेगी. अब जैसा जैसा वो बोलता जा रहा है हम वैसा करते जाएंगे. सपोज is asking only the work done due to 7 न्यूटन. तो मैं यहां पर अब अपने आप को 7 न्यूटन पे कंसंट्रेट करूंगा. Now 7 न्यूटन है, सिर्फ 7 न्यूटन का वर्क डन. रिमेंबर, एक सिस्टम के अंदर हमारे पास दो तरह के वर्क डन होते हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस के वर्क डन और बच्चे नेट वर्क डन. इंडिविजुअल फोर्सेस के वर्क डन के लिए हम उस इंडिविजुअल फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. पर हाँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये एक्सेलरेशन की वजह से आती है, और इस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए आपको सभी फोर्सेस को ऐड करना पड़ता है. तो एक्सेलरेशन आ गई. अब बताओ यहां पर मेरे पास अगर वो वर्क डन बाय क्या बोलता है? अप्लाइड फोर्स. फर्स्ट वन, द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स. द अप्लाइड फोर्स इज 7 न्यूटन. डिस्टेंस इज 125. एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री. सो बताओ कितना वर्क डन आ जाएगा? 5 और 3 7, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा? 875 न्यूटन. सो दिस विल बी 875 न्यूटन. सेकेंड वन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन दिस सिचुएशन? रिमेंबर, फ्रिक्शन के लिए हमारे पास 2 न्यूटन है and we have 125. now बॉडी आगे जा रही है, फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? पीछे. फ्रिक्शन पीछे लग रही है, बॉडी आगे जा रही है, फ्रिक्शन हमारे पास पीछे लग रही है, और इस वजह से यहाँ पर कॉस ऑफ
180 cos ऑफ 180, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -250 न्यूटन। थर्ड वन, what is the net work done? The net work done is the work done by the applied force. Work done by the applied force plus work done by the friction plus work done by the friction. Work done by applied force is 875. Work done by the friction is 250. So the answer will be, अब आंसर कितना आ जाएगा 0, 7 और 5, 2, 8 minus 2, तो 620 आपके पास। ओके ओके ओके, आई गॉट इट, समथिंग रॉन्ग। 620 जूल्स, जूल्स, ये जूल्स है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज द जूल, सो द आंसर इज 620 जूल। नाउ डी ऑप्शन, नाउ टीचर इज आस्किंग व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, now the net work done. Now teacher is asking what will be the change in the kinetic energy. So मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, what सर is 625 आना है बिल्कुल what is the net work done? सर 625 आना है। सर 625 आना है। हाँ 625. What is the net work done? I'm sorry for that. What is the net work done? आपके पास what is the net work done बताओ। net work done is positive or negative or zero. Say what is the net work done? Positive, negative, zero or unpredictable? Unpredictable, जरा ऊपर देख के बताओ। Positive. Is positive. So if the work done is positive, now what about the change in kinetic energy? Is it increasing or decreasing or it remains constant? So the kinetic energy increases, ये kinetic energy increase हो जाएगी। बॉडी ने कैसे स्टार्ट किया है? 0 से स्टार्ट किया क्योंकि रेस्ट पे थी, तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 जूल क्योंकि बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया है टू 625। क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो पार्थ सर बोलो, बता दो सर वो पॉजिटिव कैसे आया? कौन बच्चे? सर ये वाला सर इसमें लिखा व्हाट इज द नेट वर्क डन, तो पॉजिटिव कैसे आया सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, शौर्य बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी पार्ट में हमने नेटवर्क डन कितना निकाला है? सी पार्ट में हमने नेटवर्क डन कितना निकाला है? नेटवर्क मतलब हाँ बोलो, नेटवर्क डन कितना निकाला है? 625। ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? 625 जूल। नहीं ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ Positive. रहा है, तो फिर बच्चे नेटवर्क डन पॉजिटिव है कि Positive. नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? जल्दी बोलो, बढ़ जाएगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर सामने आ जाएगा। सर बढ़ेगी बढ़ेगी। वो 0 जूल से बढ़कर कितनी होगी बच्चे हमारे पास? इट हैज बिकम आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चे? ये हमारे पास यहाँ पर हो चुकी है बच्चे आपके पास 625। बस इतना सा आंसर। मुश्किल था पार्थ? बेटा आर यू सेटिस्फाइड? लॉजिक क्लियर है? मेरा लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? यस सर। पक्का श्योर पार्थ? यस सर। पक्का श्योर? देख ले, नहीं सर आगे समझ। पक्का देख ले। तूने प्रॉमिस भी किया किस दिन, बोल रखा है कि तू मेरे को कॉफी पिलाने के लिए लेके जाएगा, गया तो है नहीं तू मेरे साथ? नहीं सर जाऊंगा। झूठ मत बोलना। अब देख बहाना ढूंढ अपने दिमाग के अंदर। चल खैर, सो अब देख पार्थ चुप हो गया, मतलब कि वो बात सच थी कि झूठ थी, क्या मालूम पार्थ में इसको। है पार्थ? चलो कोई बात नहीं, पार्थ चुप हो गया। पार्थ को लगता है मैं जवाब क्या दूं इस बंदे को। सो चलिए, सो अब बच्चे हम यहाँ पर एक, जिसको बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं, एंड मैं यहाँ पर बच्चे एक मिनट रुकिएगा। सो वेयर इज दिस वन? ये रहा आपके पास। ओके, सो यहाँ पर बच्चे अभी हम ये वाली चीज है बच्चे हमारे पास। यहाँ पर रुक जाइए। देयर इज समथिंग गिवन और नॉट? ओके, सो देयर इज इट। ओके, सो अभी मैं आपको एक डीपीपी बता रहा हूँ बच्चे, ये अभी आपको क्लास खत्म होने के बाद भी मिल जाएगी, और मैं आपको यहाँ पर इसमें से सिर्फ क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन अब आपके होने चाहिए, और कोई क्वेश्चन मैं सिर्फ एक क्वेश्चन एक बार रीड करके बताऊंगा, देन आई विल। अगर आपको लगता है कि सर इसमें से कोई क्वेश्चन है जो हम नहीं कर पाते, देन यू विल आस्क मी। ओके, लेट इट कम, इसको आने दीजिए, कोई बात नहीं। सो कल फ्रिक्शन की मैंने 2 डीपीपी दी हैं,
एक डीपीपी जो पहले वाली है बच्चे वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लेवल की है, और जो दूसरी डीपीपी है बच्चे हमारे पास जो कि नॉर्मल है, उसमें वो बेसिकली उसके पीछे सॉल्ड एग्जांपल है। तो वो जो सेकंड डीपीपी दी है सिर्फ अकेली फ्रिक्शन की, उसको आपने पीछे से स्टार्ट करना। ओके, सो नेक्स्ट इज, दिखाई दे रही है सबको, ये क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं सबको? सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्क डन? राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, निकल जाएगा। What should be the angle between the force and displacement for maximum and minimum? मैक्सिमम के लिए कितना वर्क डन होता है बच्चे आपके पास? 0 डिग्री। मिनिमम के लिए कितना वर्क डन आपके पास एंगल होता है? 180. How many ergs are there in 1 joule? 10 raised to power 7. Why a coolie do no work when he moves on the level road while carrying a box on his head? क्योंकि force of gravity और displacement are at the angle of 90 degree. Which of the following is the example of positive, negative or zero work done? Work done by the man in pulling a bucket out of the well by the means of rope, कर लिया। Work done by the friction of the body sliding down inclined plane, हो गया। Work done in holding a 15 kg suitcase while waiting the bus for 15 minutes, zero work done. क्यों? क्योंकि आपके ऊपर फोर्स तो लग रही है ग्रेविटी की, लेकिन आप आगे की तरफ को डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे। बेटा मुझे ये पूरी की पूरी डीपीपी आपकी सॉल्व चाहिए, और ये सॉल्व चाहिए बच्चे मुझे कब तक बच्चे? शाम को बच्चे 6 बजे से पहले तक मुझे ये सॉल्व चाहिए। और मैं बच्चे जिसकी नहीं मिली होगी मैं रैंडमली बंदों को पिक करूंगा, उसके घर पे कॉल करूंगा, मैं बोलूंगा अपने मम्मी पापा से बात करो, आपने ये क्वेश्चंस नहीं क्यों नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 6, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ये देख लीजिए ये हो जाएगा 10 न्यूटन 2 से चल रहा है, तो 10 इंटू 2 कितना होता है? आउट डायरेक्शन मतलब एंगल 0 डिग्री, 10 इंटू 2 कितना होता है? 20। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अब आपके होने चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। और यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन में से कोई डाउट आता है, 15 क्वेश्चन आज आपके होने चाहिए। ये मैं आपको अभी क्लास के बाद मिल जाएगी या थोड़ी देर तक मिल जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन अब आपके होने चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन अब अगर आपके नहीं होते हैं तो जो डाउट आएगा फिर हम उसको बात करेंगे। ठीक है शौर्य? शौर्य ठीक है? रीगा Yes, ठीक sir. है? रीगा ठीक है? और कब तक करनी है आपने इसको जमा? कब तक आपने करनी है इसको? 6 o'clock तक। नहीं करोगे बच्चे तो पिटोगे, ठीक है, पिटाई होगी तुम्हारी। सो आज बच्चे हम यहाँ पर, अब ये डीपीपी हम सॉल्व करनी है बच्चे। आज हम यहाँ पर एक नई चीज के साथ शुरुआत करते हैं। सब कुछ हो गया, सब हो गया, वर्क डन हो गया। या जब क्वेश्चन लगाओगे तो साइन लगाना है, नेट वर्क डन निकालना है, ये भी हमारे पास प्रैक्टिस का हिस्सा है। आज बच्चे हम यहाँ पर एक बड़ी मजेदार चीज करते हैं बच्चे, और ये मजेदार चीज बच्चे हमारे पास क्या है? द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है द वर्क डन, द वर्क डन, द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, फोर्स वेरिएबल मतलब मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या। यहां पर हमारे पास हो क्या रहा है? इफ, अगर मेरे पास, आपके पास क्या है? इफ, अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है बच्चे, इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स, इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स, अपॉन अ फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स काम कर रही है, विच इज वेरिएबल, विच इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है? नॉट ऑफ फिक्स्ड, नॉट ऑफ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है बच्चे। एंड इट इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन, it is the function of the, it is the function of the distance, it is the function of the distance और position, या फिर मेरे पास पोजीशन, या फिर मेरे पास पोजीशन, यानी कि फ्रिक्शन, आपके पास फोर्स इज द फंक्शन ऑफ, इट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। मतलब जैसे जैसे हमारे पास x के वैल्यू में कोई चेंज आता जाएगा तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू में भी क्या आता जाएगा? चेंज आता जाएगा।
आपके पास इसके एग्जाम्पल क्या आ गए? फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज इक्वल टू 3x, ये वेरिएबल फोर्स है, और द फोर्स इज इक्वल टू 10x माइनस ऑफ 3, ये भी एक वेरिएबल फोर्स है, या फिर फोर्स इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, ये भी एक वेरिएबल फोर्स है बच्चे हमारे पास, 10x स्क्वायर, आई एम सॉरी, या फिर मेरे पास फोर्स इज इक्वल टू आपके पास 20 डिवाइडेड बाई x की पावर 3, कुछ भी आप ले सकते हो। ये सारी की सारी फोर्सेस हमारे पास वेरिएबल फोर्स की कैटेगरी में। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4 ही आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल आएंगे। टीचर यहाँ पर नेगेटिव साइन कहीं पर भी ले सकता है, पॉजिटिव कहीं पे भी लिख सकता है, और पावर को भी आपके पास वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। यहाँ पर अब मेरे पास क्या चीज आ जाती है, द वर्क डन। द वर्क डन, यहाँ पर जो वर्क डन हमारे पास आएगा, the work done by the variable force, the work done by the variable force, the work done by the variable force, ये कैसे हमारे पास दी जाती है? This is given by integration. Now we have the integration of the force, जो भी फोर्स गिवन होगी, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx इनटू हमारे पास dx, या फिर dy, या फिर हमारे कुछ भी, देखिए कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये जो फोर्स है ये हमारे पास वन डायमेंशनल है। ये फोर्स हमारे पास क्या है, वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब है कि ये फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस पे लगी, ये वाई एक्सिस पे भी लग सकती है, ये जेड एक्सिस पे भी लग सकती है। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि टीचर हमको क्या क्वेश्चन दे रहा है और हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मान लिया जाए हमारे पास इस फोर्स की जो वैल्यू है वो x, y और z के तीनों पे डिपेंड कर रही है, तो हमारे पास यहाँ पर पहले डॉट प्रोडक्ट होगा, उसके बाद जाकर वर्क डन होगा। और वो केस हमारे पास अलग से है, तो उसको मैं अलग से समझाऊंगा, क्योंकि वो स्कूल लेवल पे आने वाला केस नहीं। तो पहला तो ये केस है, ये स्कूल लेवल पे भी पूछा जा सकता है, और हमारे पास कई जगहों पर इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन भी है। मैं समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक केस आ जाता है। व्हाट इज द केस? वी हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि इफ अ बॉडी, मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी इज एक्टेड अपॉन द फोर्स, इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, बाय अ फोर्स, बाय अ फोर्स, यहाँ पर एक बॉडी पे एक फोर्स लग रही है बच्चा हमारे पास, and this force is given by, आपके पास F is equal to, सपोज कि हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 13 into x। कैलकुलेट the work done by this force, calculate the work done by this force, work done by this force, the work done by this force in moving the body, in moving the body, in moving the body। हम यहाँ पर बॉडी को मूव कर रहे हैं, कहां से कहां पर, फ्रॉम आपके पास यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास x इज इक्वल टू 2 मीटर। फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 मीटर। ये हमारे पास यहाँ पर आ गए। अब बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? शाबाश। मेरे पास यहाँ पर वर्क डन किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास f dx। अब बच्चा बोलता है सर अगर ये 13y होती तो मैं f dy कर देता, अगर ये 13z होता तो मैं f dz कर देता। ये बात दिमाग लगाने वाली। और फिर अगर हम 0 से लेके देखा जाएगा तो 2 तक करेंगे। अब जो बच्चा इंटीग्रेशन भूल चुका है तो बेटा देखिए, आपको इंटीग्रेशन एक बार दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, और रीजन क्योंकि नहीं तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन अटकने लग जाएंगे। और वैसे बड़ा सिंपल सा यहाँ पर इंटीग्रेशन का रूल यूज होगा। x की पावर n dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, बोलो, xn+1 डिवाइड बाई n, ये हमारे पास हो जाती है। और n की वैल्यू यहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए, सिर्फ याद रखना -1 नहीं होनी चाहिए। ये बच्चे आपके पास n की वैल्यू -1 अगर हो गई तो फिर लॉग का फॉर्मूला आ जाएगा 13, और यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर कितना आ जाएगा बताओ, x dx।
0 से लेके 2। अब अगर हम आगे चलते हैं तो 13। अब बताओ x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? x की पावर कितनी होगी? x की पावर कितनी है? 1। 1 + 1 कितना होता है? 2। तो हमारे पास यहाँ पर x की पावर 2/2, लिमिट 0 से लेके 2। आपके पास करते क्या है, एक बार इसके अंदर हम अपर डाल देते हैं 2 का स्क्वायर, एक बार हम लोअर डाल देते हैं और ये आ जाएगा बच्चा आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू। इसके बाद 13 × 4/2, ये कैंसल 2, तो यहाँ पर कितने का आ जाएगा आपके पास? 26 जूल का वोट करना। तो यहाँ पर मेरे पास 26 जूल का वोट। बड़ा आसान है यार, बिल्कुल बहुत आसान है भाई। ये इससे आसान आपको कोई चीज मिलेगी सिर्फ इंटीग्रेशन करनी। हाँ, टीचर इंटीग्रेशन टफ कर सकते, टीचर हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो थोड़ी सी टफ कर सकते हैं, और उसके पल्ले है क्या बच्चे कि वो थोड़ी सी टफ इंटीग्रेशन करके करके आपको क्वेश्चन देते। कैसे? जैसे कि वो अगर आपको बोले भाई एक फोर्स लग रही है F = ax² - b, आपके पास x, ये मतलब हमारे पास कोई फोर्स लग रही है, ये अब x पे डिपेंड कर रही है। कैलकुलेट, यहां पर मुझे कैलकुलेट करना है द वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन, जहां पर x 0 से लेके कहां तक चेंज हो रहा है? अरे भाई बोलो, कहां तक चेंज हो रहा है? s तक चेंज हो रहा है। s कहां से कहां पर चेंज हो रहा है? 0 से लेके s, 0 से लेके s। अब मुझे वर्क डन निकालना है। सॉल्यूशन अब बताओ कैसे करोगे भाई? आपके पास इंटीग्रेशन f × dx, और ये मेरे पास क्या आ गया? वर्क डन आ गया। और इंटीग्रेशन फोर्स क्या आ गई? ax² - bx, और यहां पर मेरे पास क्या आ गया? dx। 0 से लेके s, 0 से लेके s आ गया। अब करना क्या है हमने यहां पर? करना क्या है? इंटीग्रेशन के रूल्स लगा देने, 0 से लेके s और ax² × dx। अब कौन बच्चा आप में से बताएगा हिम्मत करके कि ax² की आपके पास इंटीग्रेशन क्या होगी? कौन बच्चा बताएगा? शाबाश बोलो। ये हमारे पास a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx 0 से लेके s, माइनस ऑफ b इंटीग्रेशन 0 से लेके s अब x dx। कौन बच्चा बताएगा? शाबाश बताओ। x³ by 3. सर x³ बिल्कुल, by 3, x³ x³ by 3. 3 आ गया, 0 से लेके s, माइनस ऑफ b यहाँ पर x² by 2 0 से लेके s। और मैं यहीं पर इसको खत्म कर रहा हूँ कि ये वर्क डन कितने के बराबर है? तो a / 3 और x³, तो हमारे पास s³ - 0 का क्यूब, अपर माइनस लोअर, और b / 2 और मेरे पास s का स्क्वायर - 0 का स्क्वायर। तो बताओ वर्क डन कितने के बराबर आ गया भाई? as³ - 3 - bs² 2 और इतने जूल का वर्क डन। ज्यादा से ज्यादा टीचर के पल्ले में भाई ये बात है। अब टीचर बोलता है नहीं, मैं इससे भी टफ क्वेश्चन दूंगा। अब बताओ वो इससे टफ क्वेश्चन कैसे देगा? आपको लग रहा होगा अरे चलो चलो इतनी इंटीग्रेशन तो मैं कर लूंगा, इंटीग्रेशन की रिवीजन कर लूंगा तो हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मुश्किल क्या आएगी? लॉग का बच्चा आपके पास कोई लॉग का आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी हम कर लेंगे, क्योंकि लॉग ही तो लगाना है, अपर माइनस लोअर करना है, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर टीचर बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे सूखा नहीं जाने दूंगा, ऐसे थोड़ी ना मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्यों? अब टीचर देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन देता है, और टीचर हमारे पास जिस क्वेश्चन को देता है उसको हमारे पास यहाँ पर करना कैसे देखते हैं। सो 6.20 क्वेश्चन NCERT, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, और दिमाग मतलब कि बिल्कुल फोकस करवा देता है। हमने सीखा क्या? A body of mass 5 kg, मैं स्टेटमेंट यू हैव टू गो बाय द NCERT टुडे, और ये क्वेश्चन को दोबारा से आपने रिसॉल्व करना भाई। हालांकि रिसॉल्व कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, हालांकि रिसॉल्व को अगेन सॉल्व करना होता है। अ बॉडी ऑफ मास कितने के बराबर है? 0.5 kg। ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू, आपके पास है 5 × x की पावर 3/2।
ये कोई वेलोसिटी है, आपके पास मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास वैल्यू है। कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 2 मीटर। अब पड़ गया पंगा। अब टीचर के पास एक मुश्किल बच्चा, आपके पास क्या आ गया, मुश्किल चीज आ गई। अब आपके पास एक मुश्किल घड़ी आ गई। अब बोलोगे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूं, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, हो ही नहीं सकता सॉल्व। मेरे पास ना तो यहाँ पर फोर्स है, चलो मेरे को इंटीग्रेशन करनी है, इतना पता लग गया, क्योंकि टीचर मुझे एक x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 मीटर की क्या दे रहा है, आपको पोजीशंस दे रहा है। इतना मुझे पता लग गया कि यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और क्योंकि बात x की हो रही है तो यहाँ पर वर्क डन अब आपके पास किसके बराबर होगा, शाबाश बताओ, अरे बोलो ना साथ साथ, क्या हो जाएगा, F इंटू dx 0 से लेके 2। फोर्स नहीं दे रखी बट मास दे रखा है, तो फोर्स कैसे निकलेगी जरा बताओ, फोर्स mg m इंटू ए, क्योंकि अब एक्सेलरेशन mg नहीं होगा ना बच्चे, ग्रेविटी नहीं है, ये अप्लाइड फोर्स में चलेगा, m इंटू ए, यानी कि ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी। प्रॉब्लम ये एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी गिवन है। अच्छा वेलोसिटी गिवन है, अब एक्सेलरेशन क्या होती है जरा बताओ, ये हमारे पास करते हैं dv अपॉन dt, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी भी बताओ किसका फंक्शन है, शाबाश बता दो, x का। अब कहां पर कहानी चलेगी बताओ जाकर, काइनेमेटिक्स के अंदर। अगर आपकी वेलोसिटी फंक्शन ऑफ डिस्टेंस होती है तो कौन बच्चा मुझे बताएगा कि एक्सेलरेशन क्या होती है, बताओ शाबाश, v dv बाई dx। ये पॉइंट है। अब जिस बच्चे का काइनेमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होगा, जिसने मेरी वो बात याद रखी होगी कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन दो तरीकों से आती है, एक जब dv अपॉन dt और दूसरा जब हमारे पास v dv अपॉन dx। यहाँ पर v dv अपॉन dx क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x। एग्जैक्टली यहाँ पर 6.20 क्वेश्चन, 6.20 क्वेश्चन एक आपको गेज करने का तरीका, यानी कि अगर मुझे किसी बच्चे को गेज करना है तो उसने काइनेमेटिक्स भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, मैं बोलता हूँ बेटा 6.20 क्वेश्चन करके बता दे, 6.20 क्वेश्चन करके बता दे। अगर तू 6.20 क्वेश्चन करके बता पा रहा है तो इसका मतलब बड़ी अच्छी चीज कर पा रहा है, और अगर नहीं बता पा रहा है तो मतलब काइनेमेटिक्स भी सुधारो, इसको भी सुधारो। अब एक्सेलरेशन निकालनी, सो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेरे पास क्या आ जाती है, एक्सेलरेशन v, यानी कि ये v आ गया dv अपॉन dx, तो d बाई डी एक्स ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर कितना आ जाएगा 3 बाई v, 5 इंटू एक्स की पावर 3 बाई 2, और आपके पास d बाई डी एक्स, तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया 5 और ये 3 बाई 2 है, ये आपके पास 3 बाई 2 है, और x की पावर 3 बाई 2 माइनस ऑफ। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो जरा बता दो कितने के बराबर आ जाएगा, ये 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75, 75 बाई 2, और x की पावर कितने के बराबर है, शाबाश बताओ, 3 बाई 2 माइनस हाफ, तो 3 बाई 2 माइनस हाफ, 3 बाई 2 प्लस हाफ, आई एम सॉरी माइनस हाफ नहीं प्लस हाफ, 3 बाई 2 माइनस 1 कितना होता है हाफ, तो 3 बाई 2 प्लस ऑफ हाफ। जल्दी बता दो एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, शाबाश 75 बाई 2, एक्स की पावर कितनी आ गई 4 बाई 2, 4 बाई 2 कितना आ गया आपके पास, यहाँ पर 2। 2 देखा क्वेश्चन 6.20 क्वेश्चन जिस दिन आपके स्कूल के अंदर आ जाएगा तो उस दिन हड़कम बच जाएगा, जिस दिन ये बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया आपके माइंड की थिंकिंग चेक की जाती है। मैंने क्या बोला, एक बच्चे के कैलिबर को अगर मुझे भी चेक करना है कि ये बच्चा मुझे आके बोलता है सर मुझे वर्क पावर एनर्जी पूरा आता है, तो मैं 6.20 क्वेश्चन उससे पूछता हूँ एनसीईआरटी, इफ ही और शी इज एबल टू आंसर तो इसका मतलब उसको सब कुछ आता है जो वो एडमिट कर रहा है, लेकिन अगर उसको दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब उसको अभी पढ़ाई की जरूरत, अब फोर्स आ जाएगी। सो फोर्स किसके बराबर आती है, शाबाश बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितने के बराबर है 0.5, और आपके पास एक्सेलरेशन 75 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का स्क्वायर, यह हमारे पास कितना आ जाएगा 75 बाई 4
इंटू एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 और ये हमारे पास 18, तो आपके पास 18 पॉइंट ऑफ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 35 32, तो 30 आ जाएगा 0.7 और आपके पास 2 तो 5, तो 18.75 इंटू एक्स का स्क्वायर, ये फोर्स आ 18.75 इंटू एक्स का स्क्वायर, ये आ गई फोर्स। अब जब ये फोर्स आ गई, बोलो। तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते 75.4 पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर 18.75 एक्स का स्क्वायर, ये फोर्स आ गई। अब पॉइंट हमारे पास रह गया कि मुझे क्या निकालनी है, वर्क डन। सो द वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ 18.75 इंटू मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू dx, और ये अब मुझे 0 से लेके कहां तक करना है इसको, कहां पर लिमिट दे रखी है, 0 से लेके 2, एग्जैक्टली 2 मीटर। ये क्वेश्चन अगर आपने एक बार कर लिया तो फिर बार दूसरी बारी गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। और ये मेरे पास x³ 3 लिमिट्स 0 से लेके 2, और दिस इज 18.75 डिवाइडेड बाई 3 और x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 6 पॉइंट, यहाँ पर 2 5, कैसे डिवाइड कर दिया 3 से, मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास कितना आ गया 8 2 की पावर 3, और दिस विल बी इक्वल टू 0 4, तो ये आपके पास 20 और आपके पास 2 48 और आपके पास कितना आ जाएगा 50। सो द आंसर इज, आंसर देखो कितने के बराबर है, कितना आंसर है 50। आंसर परफेक्ट है, 50 जूल आंसर है, परफेक्ट 50 जूल का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको घर जाकर सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद मेरा सर खाना पड़ेगा कि सर क्वेश्चन नहीं हुआ सर, क्वेश्चन हमने ट्राई किया, हमने ट्राई करके देखा नहीं हुआ क्वेश्चन, हमें दोबारा करके बताओ। तो जितनी बार आप बोलोगे वो क्वेश्चन फिर उतनी बार आ जाएगा, लेकिन पॉइंट को समझने की कोशिश करना। मैं कोई भी पॉइंट उठा रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक है, मैंने ऐसा ही क्यों किया, उसके पीछे का रीजन जानोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। चलो अब चलते हम यहाँ पर आगे की तरफ, ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, चलो ये भी चीज हमारे पास आ गई। अब हम आगे की तरफ को चलते, एक स्टेप और आगे चलते। यहाँ पर अब मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आपके कंपटीशन फाइल का हिस्सा, यह हमारे पास कंपटीशन फाइल का हिस्सा, कंपटीशन फाइल का हिस्सा, यह हमारे पास कंपटीशन फाइल का क्या हिस्सा है बच्चे, इफ, ध्यान से समझिए, इफ अगर मेरे पास फोर्स इज द फंक्शन ऑफ द टाइम, द फोर्स इज द फंक्शन ऑफ द टाइम, वो टाइम पे डिपेंड करे, then the work done is given by integration of f velocity into time dt, force into velocity into time dt। ये बात अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फ्रॉम T1 to T2। ये कंपटीशन फाइल का है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस PYQs के अंदर नजर आ जाएंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आ चुके। और यहाँ पर फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू dt, हाउ, मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन देखिए। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है किसके बच्चे, ऑफ द बॉडी, if the displacement of the body is given by, if the displacement of the body is given by, if the displacement of the body is given by x is equal to, focus करना, x is equal to 4t, आपके पास यहाँ पर 4t का आपके पास आ जाता है क्यूब। कैलकुलेट, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन, वर्क डन for the mass of 2 kg, for the mass of 2 kg from आपके पास t is equal to 0
से लेके t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बहुत ध्यान से करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो जो पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाए। जैसे कल मैंने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था जिसमें मैंने ये भी आपको समझाया था कि अगर कोई बच्चा हमें फीडबैक दे रहा है कि सर आपके करवाए हुए क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आए लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन छूट गए, तो बात यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की भी आती है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता भी लग जाते हैं तो भी एक चीज जो जिसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन अगर उसको सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है तो फिर हम उसको बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो। सबसे पहला काम होता है कॉन्सेप्ट को अडेप्ट करना, उसके बाद होता है कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के बाद टाइम पे काम करना। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ जाता है तो आपको इसको कम से कम टाइम के अंदर करना है, इसी को टाइम मैनेजमेंट बोला जाता है। और इसी वजह से कोचिंग भी दी जाती है। कोचिंग का पर्पस होता है दो काम का, एक एक्यूरेसी बढ़ाना और दूसरा टाइम बचाना। अगर हम एक्यूरेट नहीं हो पा रहे हैं, टाइम ठीक है टाइम तो बचा रहेगा लेकिन बच्चे उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर हम एक्यूरेट और टाइम पे पेपर खत्म नहीं हो पा रहा है या हमारे क्वेश्चन छूट रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। So if the displacement of the body is given by x is equal to 4t का cube, the work done for the body of mass 2 kg from t is equal to 0 to t is equal to 2 second. Solution focus करना, समझना, ध्यान से समझना। यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास 4t क्यूब है, therefore वेलोसिटी बताओ किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बताओ वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी 12t का स्क्वायर। Therefore, आप बताओ एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश बता दो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी, आपकी एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी 44 आता जा रहा है। और इस वजह से अब बताओ कि फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन 2 into 24t, और यह हमारे पास कितना आ जाएगा 48, यह हमारे पास कितनी आ जाती है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे, फोर्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वन, अब मेरे पास ये फोर्स आ गई है तो अब ये फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो वर्क डन किसके बराबर है, इंटीग्रेशन मेरे को 0 सेकंड से 2 सेकंड पे निकालना, फोर्स 48t है। अब आगे चलते हैं, आगे वेलोसिटी कितने के बराबर है 12t का स्क्वायर, तो 12 आपके पास यहाँ पर t का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास क्या आ गया dt आ गया। यहाँ पर मेरे पास 48 इंटू मेरे पास कितना आ गया 12, और यहाँ पर मेरे पास अंदर इंटीग्रेशन कितने के आ गए 0 से लेकर 2, और t क्यूब इंटू dt। अब कौन बच्चा बताएगा कि यहाँ पर आपके पास एक कोई बच्चा 48 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर 48 इंटू 2, तब तक मैं आगे निपटाता हूँ। तो t क्यूब dt तो बताओ कितने के बराबर है, t 4 का आपके पास और 4 0 से लेके 2। चलो एक और काम कर देते हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं 3 तो ये जल्दी हो जाएगा, 4 और आपके पास 2 तो आपके पास कितना आएगा 144, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 अपर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, जल्दी बोलो भाई क्या हो जाएगा 144। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 कितनी होती है बताओ शाबाश 16। तो 144 इंटू 16 करना, कौन बच्चा बताएगा, चलो एक बच्चा करके ही बता दे शाबाश। एक बच्चा फटाफट करके भी बता दे 144 इंटू 16 कितना 2304। भाई देखो मैं इन दोनों की बात मान रहा हूँ, अंधा विश्वास कर रहा हूँ इन पे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपने गलत भी किया होगा, लेकिन बच्चे आप समझने की कोशिश करो, ये वो फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पर एनसीईआरटी पे भी आपको बता दिया कि टीचर इस वेरिएबल वर्क डन को भी 3-4 जो है बच्चे कॉन्सेप्ट के ऊपर घुमाएगा, इसके बाहर बच्चे कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, इस पॉइंट के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा।
और फिर 1। और लास्ट है बच्चे, अब हमारे पास यहाँ पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। तो लास्ट है हमारे पास, सर बोल 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 बोल, सर पिछला पेज करिए एक बार। 1 मिनट, बोल बेटा। स्क्रीनशॉट लेना सर, हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा भी ले लिया करो स्क्रीनशॉट से। चलो सो हमारे पास यहाँ पर अब क्या आ जाता है कि वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, आपको वर्क डन निकालनी है बाय वेरिएबल फोर्स, बाय द वेरिएबल फोर्स, बाय द वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स एंड ग्राफ। और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ग्राफ। द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स एंड द ग्राफ, ये हमको देखो। और पॉइंट हमारे पास यहाँ पर 2 हैं। नंबर 1, द एरिया अंडर फोर्स, एरिया अंडर force and displacement, the area under the force and the displacement graph, the area under the force and displacement graph, the area under the force and displacement graph आपको क्या देगा, will provide you, ये आपको यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेगा, this will provide you the work done। ये हमारे पास सबसे पहली चीज आ गई, ये हमको वर्क डन प्रोवाइड करेगा। ये हमारे पास हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वर्क डन। ये फोर्स आ गई, और ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारे पास यहाँ पर फोर्स आ गई, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। सो दिस इज द फोर्स F, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, S है। और अगर मेरे पास यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे बन गया, तो इस ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया होगा, किसी भी एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच का, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, आपके पास किसी किस्म का, आपके पास जो हमारे पास यहाँ पर एरिया होगा, वो हमारे पास हमें क्या देगा, द वैल्यू ऑफ द वर्क। ये जो शेडेड पार्ट है, ये हमको क्या देगा, बताओ शाबाश, ये शेडेड पार्ट हमको क्या देगा, द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। या हमको वर्क डन की वैल्यू देगा, ये वर्क डन के हमको यहाँ पर वैल्यू देगा, यानी कि ए, बी, आपके पास सी और डी। द एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम आपके पास x1 टू x2, फ्रॉम x1 टू x2, जहां पर ए मेरे पास x1 है और डी मेरे पास यहाँ पर x2, जहां पर ए मेरे पास यहाँ पर x1 है और दूसरा x2 हमारे पास यहाँ पर एक लास्ट बच्चे हमारे पास पोजीशन। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है बच्चे, और कॉन्सेप्ट है हमारे पास द एरिया इज कैलकुलेटेड विद साइन कन्वेंशन, द एरिया इज कैलकुलेटेड विद द साइन कन्वेंशन, with the sign convention, with the sign convention, the area is calculated with the sign convention। इसका मतलब कि हमारे पास जो ऊपर वाले एरिया होंगे, ऊपर वाले ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे, और नीचे वाला अगर कोई एरिया आता है तो वो हमारे पास नेगेटिव, और वो एरिया हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस से नीचे वाला एरिया नेगेटिव है और ऊपर वाला हमारे पास पॉजिटिव। अब इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे और देख पाएंगे क्वेश्चन करना कैसे। ये मेरे पास यहाँ पर एक ग्राफ है, और इस ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या निकालना है, वर्क डन निकालना, और ये वर्क हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये आपके पास गया, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हो गया, इसके बाद यहाँ पर है, और ये हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, फोर्स। और जो फोर्स है आपके पास वो हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर है, मान लो 20 न्यूटन। ये हमारे पास यहाँ पर 20 न्यूटन। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये वाली चीज पे बात अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास कितने के बराबर है, -5 न्यूटन। ये फोर्स की बात है। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट मेरे पास 10 मीटर है और यहाँ पर मेरे पास है 15 मीटर। टीचर हमें यहाँ पर वर्क डन के बारे में पूछता है कि व्हाट इज द वर्क डन।
तो वर्क डन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले इसका एरिया है। बताओ ये किसका एरिया बन जाएगा, शाबाश बताओ। ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। तो हर्षल इसका एरिया कितने के बराबर आ जाएगा, बताओ शाबाश। आपके पास हाफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट, ये 20 है, तो आंसर कितना आ गया 100 जूल का। और फिर हमारे पास एक और वर्क डन होगा आपके पास, ये वाला, ये वर्क डन है आपके पास। ये वर्क डन हमारे पास किसके बराबर है, ये दूसरा। तो हमारे पास इसका वर्क डन कितने के बराबर आ जाएगा, द वर्क डन इज 15 माइनस ऑफ 10, ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 5, तो कितना आ जाएगा -25 जूल, -25 जूल। देयरफॉर इस वजह से हमारे पास जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज गिवन बाय 100 ऊपर वाला -25, और आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 75। The answer will be 75. The answer will be 75. Okay. लग गया पता बच्चे आपको, लग गया पता आपको, यहाँ पर लग गया Yes, पता sir. बच्चे। ओके नेक्स्ट सर बोलो, एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर आपने वहाँ पे 15 माइनस 10 सर कैसे किया, एक बार दोबारा बता दो। बोलो बोलो शाबाश, हाँ जी बोलो, कौन सा बेटा। सर जी 15 माइनस 10 सर कैसे हुआ। क्योंकि हमको नीचे वाले का वर्क डन निकालना है, तो इसका एरिया चाहिए। अब ये एरिया ऑफ क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एरिया के अंदर एक लेंथ होती है और दूसरी क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। तो अब बताओ इस रेक्टेंगल के अंदर अगर मुझे लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है तो बताओ वो मैं कैसे कैसे निकालूंगा, शाबाश बताओ। अब बताओ शौर्य, आप इसका आंसर दो, बताओ मुझे। अगर मैं ये लेंथ निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा, बताओ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, क्या क्या, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, वो तो आ गया, वो तो मुझे भी पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ और ब्रेड्थ के लिए एक ये वाली आपको चाहिए पैरामीटर, एक ये चाहिए। ये पैरामीटर तो आपके Yes, पास sir. -5 आ गया है ना, तो ये कैसे निकालोगे, इस पैरामीटर को कैसे निकालोगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट 10 मीटर है और लास्ट पॉइंट 15 मीटर है, तो बताओ इसको कैसे निकालोगे, शाबाश बताओ। सर 15 माइनस 10, ओके सर। ठीक है, तो आपने, मैं तो आंसर दिया नहीं, आपने अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया, आया ना। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट होमवर्क। अब बच्चे ये होमवर्क आपका होना चाहिए, और आपका होमवर्क है बच्चे पेज 119 एग्जाम्पल 6.5, पेज नंबर हमारे पास 119 NCERT, NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल 6.5। ये होमवर्क अब आपका होना चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमको यहाँ पर ये बात समझ में आनी शुरू हो जाती है कि करना कैसे। नेक्स्ट पेज नंबर, चलो सेकंड क्वेश्चन को अभी हम रहने देते हैं, उसको अभी हम सस्पेंड कर देते हैं आगे चल के। तो ये हमारे पास केसेस आ गए, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन क्या, तो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है, क्लासिफिकेशन। So next is the work done and the classification of the forces. So next topic is the work done and the classification of the forces. The work done and आपके पास classification of the forces. Classification of the forces. The classification of the forces. यानी कि मुझे classification करनी है किसके बच्चे, forces. The work done and the classification. The classification of the forces. तो जरा चेक कर दो। So यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आ जाती है, remember ये बात ध्यान रखना, there are two types of the work done on the basis of the, there are two type of the forces on the basis of the work done. Number one force is known as to be the conservative force. Conservative force. The conservative force is the type of the force. यह बच्चा हमारे पास एक ऐसा टाइप ऑफ फोर्स है इन विच, जिसके अंदर हमारे in which number one the work done do not depend on nature of the part. The work done does not depend on
does not depend on the nature of the path, or the length of the path. Second, इसका मतलब the work done depends on initial and the final point. Initial and final point. The initial and the final point. Next one, the work done by conservative force. The work done by the conservative force is zero over the आपके पास क्लोज्ड लूप, यानी कि बॉडी जहां से चल के आ रही है अगर वहीं पर वापस आ जाए, सर्कल में आ जाए, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सपोज कि मेरे पास कोई एक फोर्स लग रही है और बॉडी ने ऐसी डिस्प्लेसमेंट कर दी, और ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है ए और एंड पॉइंट है हमारे पास बी। अगर कोई दूसरी बॉडी, आप इसी दो पॉइंट्स के बीच में सेम फोर्स बॉडी को ए से बी ऐसे लेके जा रही है, इसी केस के अंदर यही फोर्स बॉडी को ए से बी कुछ इस तरीके से आपके पास लेके जा रही है, ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से लेके जा रही है, ये आपके पास लेके जा रही है, और इसी केस के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सेम फोर्स, देखो वही फोर्स है इन तीनों के अंदर, पाथ नंबर 1 में, पाथ नंबर 2 में, पाथ नंबर 3 में हमारे पास सेम फोर्स लग रही है, सेम फोर्स इन तीनों केसेस में सेम फोर्स लग रही है। पाथ अलग अलग नेचर का है लेकिन फोर्स सेम लग रही है। या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप सेम फोर्स लगाकर पहले ऐसे लेके गए, ऐसे लेके गए, ऐसे ऐसे, और आप बड़े अजीब ढंग से इस बॉडी को कहां से कहां पर लेके आ रहे हो, ए से बी की तरफ, और ये मेरे पास 4th नंबर का पार्ट, ये मेरे पास कौन से नंबर का पार्ट है, 4th नंबर का पार्ट। अगर इन चारों पाथ के अंदर हमारे पास वर्क डन W1 हो रहा है, वर्क डन W2 हो रहा है, वर्क डन W3 हो रहा है और वर्क डन W4 हो रहा है, अगर ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा, किसकी वजह से होगा, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा, तो ये चारों वर्क डन सेम होंगे, क्योंकि इन चारों के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ये सेम। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्योंकि सेम है, आइडेंटिकल है, इस वजह से हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन चारों में सेम होगा, रास्तों का नेचर अलग अलग है बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। और अगर कोई फोर्स ये वर्क डन करती है और चारों में वर्क डन सेम आती है तो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ये वाइसे वर्स है, अगर वर्क डन सेम है तो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन सेम है। ये चारों अलग अलग रास्ते, बॉडी पहले ए से बी ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया और ऐसे गया। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई फोर्स F इन्वॉल्व है और वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको प्रूव भी करेंगे, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो बताओ इसका मतलब क्या आ गया, वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3 और लास्ट है वर्क डन 4। ये चारों वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तब जब ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आज के लिए हम यहाँ पर इसको खत्म करते हैं, और कल हम इसके ऊपर, पहले तो आप डीपीपी वगैरह सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे, जो आज आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क कंप्लीट करोगे। उसके बाद कल हम बच्चे नया टॉपिक शुरू करेंगे, एनर्जी। तो नया टॉपिक शुरू करेंगे एनर्जी, लेकिन इसके लिए पहले आपको पूरा काम करना पड़ेगा। चलिए, तो इसको पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर